Hello dear students, today we shall complete grammar topic modals. Modals, as you know very well, that these are called secondary auxiliaries. Auxiliaries का meaning क्या होता है? Helping verb. In English we have primary auxiliaries also that you are using in tenses: is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. So these are primary auxiliaries. Auxiliary means helping verb. ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब. एंड मॉडल्स वी आर यूजिंग विच शोज अवर मूड. Modals are secondary auxiliaries we use to show our mood, means in which sense we want to express our views. That can be our expression of permission, that can be expression of a request, order, command. So many expressions we are using in our daily life to convey our messages to the others. So today we shall see some modals here. So let us see the use of may. First of all, I want to tell you the use of may. May is used very common. May we are using in a case of permission. For example, in school you are taking permission from your teacher, may I come in sir? And the teacher also allows you, yes dear student, you may come. So for example, you can say, may I take your pen? Okay, so may I take your pen? Here modal is used, may is used. So dear student, here you have to keep in your mind, when you are using modal, after that you have to use verb first form. Base form of the verb you will be used first form, always first form. Okay, after modals you will use. Next is, it is for permission, and the next is prayer, wish. When you are praying to God or we are wishing someone, in that case also we use may. उस केस में भी हम may का use करते हैं. For example, may God bless you, may God bless you, sign of exclamation. So here we are using may for prayer or wishing someone. Next is possibility. May can also be used for the purpose of possibility. Possibility means संभावना, probability. Okay, for example, he may attend the party. वो पार्टी अटेंड कर सकता है. He may attend the party. So there is a chance, there is a possibility. So in this way we can use may also. Next is purpose. We are using may for the purpose point of view also. Purpose के लिए भी हम use करते हैं. For example, we study. हम क्यों पढ़ते हैं? We study so that we may get knowledge. ताकि हम knowledge, ज्ञान प्राप्त कर सके. So that we may get knowledge. So after so that you are using may. So here in this sentence it is showing a purpose. So this is the use of may, dear students. It is easy to learn with the rules of may: permission, prayer, possibility and purpose. Easily you can learn this with the 4P formula. This is the use of may. Next is, we shall use might. Yes dear students, next is might. Might modal we are using when there is a remote possibility. मतलब जहाँ पर कम संभावना होती है वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? might. For example, he might interfere in this matter. वो इस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा. तो जब आप ऐसा एक्सप्रेशंस हो, आपका मूड हो कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार वो ऐसा काम कर नहीं सकता लेकिन हो सकता है, इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना हो, तो इन दैट केस यू विल यूज माइट. ही माइट इंटरफेयर इन दिस मैटर. मीन्स हिज नेचर is not such type of that he is poking his nose
into every matter, but might be ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा यूज इन द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट का यूज हम मे की पास्ट फॉर्म में भी करते हैं। he said that he might participate in the function. He said that when we are making indirect speech, when we are converting sentence from direct speech to indirect, we see that if reporting verb is in the past tense, okay, he said that he might participate in the function. So you can see that here may is converted into might. So dear students, might is also used in the past form of may. Next is the use of can and could. Next हमारा यूज ये रहेगा can, कहाँ पर can यूज होगा, कहाँ पर could यूज होगा। Dear students, can is used for showing present ability. अगर आप present की ability को show करना चाहते हैं तो in that case he can speak in German. He can speak in German. वो जर्मन लैंग्वेज में बात कर सकता है। It means ये उसकी एबिलिटी है, ये उसकी क्या है, एबिलिटी है, उसमें योग्यता है। अगर आप में किसी काम करने की क्षमता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उस केस में आपने क्या यूज करना है, कैन का यूज करना है। सो नेक्स्ट इज परमिशन इनफॉर्मल। अगर आप किसी से परमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने फादर से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, आप पास में बैठे हैं, कोई चीज़ आप उससे लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो इन दिस केस वी शैल यूज फॉर द इनफॉर्मल पर्पज ओनली। ओके, सो परमिशन वी लर्न इन द यूज ऑफ मे ऑल्सो। जब हमने फॉर पी फॉर्मूला किया था तो उसमें मे के अंदर भी हम परमिशन का यूज करते हैं, लेकिन दैट इज यूज फॉर फॉर्मल। और इनफॉर्मल केसेस में जैसे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कैन। कैन इज यूज आल्सो यूज फॉर ग्रेटर पॉसिबिलिटी। हम पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही कैन टॉप इन द कमिंग एग्जाम। जब आपको एक पॉसिबिलिटी है, संभावना ज्यादा है कि एनी पर्सन इज डूइंग लेबर, दिस टाइम इन द बॉय इज डूइंग लेबर, ही कैन टॉप इन द एग्जाम। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या यूज करेंगे, कैन का। नॉर्मली वी आर यूजिंग मे, कम संभावना के लिए हम माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वी शैल सी द यूज ऑफ कुड। कुड इज यूज फॉर पास्ट एबिलिटी। जहां हम कंपेयर करें प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन, और पास्ट की एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड। फॉर एग्जाम्पल ही कुड स्पीक इन पंजाबी इन हिज चाइल्डहुड। वो बचपन में पंजाबी में बहुत अच्छे ढंग से बोल सकता था, बट नाउ डेज ही हैज बिकम more educated, he has gone to foreign, nowadays he is speaking in English, but in his childhood आप ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि अपने बचपन में ये काम कर सकता था, तो ये क्या आएगा, आपका कुड आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको दोनों की हिंदी भी पता होनी चाहिए। कैन का जो सेंस है वो क्या निकलता है, सकता है। जब आप कोई काम कर सकते हैं तो उसके लिए क्या आएगा, आपका कैन। और कुड के केस में जैसे सकता था, जैसे अभी मैंने से एग्जाम्पल लिखा कि वो पंजाबी में बोल सकता था, और सका भी आ सकता है हिंदी में। अगर आप देखें, जैसे वो काम नहीं कर सका, तो ही कुड नॉट कंप्लीट दैट वर्क, ही कुड नॉट कंप्लीट दैट वर्क, वो ये काम नहीं कर सका। ठीक है। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का यूज जो है हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जब आप अपने फ्रेंड से, किसी से भी आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कुड। उस केस में मॉडल कौन सा यूज होगा, कुड। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या आप अपने मुझे पेन दे सकते हैं। तो हियर यू आर टेकिंग परमिशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, ओके, लेकिन हियर यू आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट। सो कीप इन योर माइंड द यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। यूज ऑफ शेल एंड विल। अब हम देखेंगे शेल और विल का क्या यूज है। शेल एंड विल इट्स अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑल्सो वी आर यूजिंग शेल एंड विल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, आई शेल कंप्लीट माई वर्क टुमारो, तो मैं अपना काम जो है वो कल कंप्लीट करूंगा, मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फ्यूचर में जो है कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है, ही विल हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। वो जो है मेरी हेल्प करेगा
in this project next week. Means not now, he had not helped in the past, उसने past में help ही नहीं की है, और in present also he is not helping me, he will help me in the future, वो future में मेरी help करेगा. तो in this way he will help me in this project next week. next week में जो है वो मेरी help करेगा, ये sense आएगी इसमें. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आई और वी के साथ शेल लगाएं, विल लगाएं, विल कहाँ आएगा, शेल कहाँ आएगा. नॉर्मली वी यूज शेल विद इफ आई एंड वी. आई एंड वी के साथ हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, शेल यूज करते हैं. व्हेन टाइम इज गिवन, आई शेल कंप्लीट माय वर्क टुमारो, टाइम इज गिवन, देन शेल यू आर यूजिंग. बट व्हेन यू आर गिविंग एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेशन, जब आप डिटर्मिनेशन का कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ओके, इन द केस ऑफ थ्रेट, वार्निंग, थ्रेट और वार्निंग के केस में आई और वी के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा. डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की आप बात कर रहे हैं, उस केस में भी जो है आपका आई और वी के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल अगर देखें तो लेट मी शो यू. I'll crack this exam. I'll crack this exam this year. I'll crack this exam this year definitely. तो ये जो definitely word है स्टूडेंट्स, definitely words क्या शो कर रहा है, आपके डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है कि इस साल जो है मैं ये अपना एग्जाम जो है वो क्रैक करूंगा ही करूंगा. तो here you are using I will crack. Nowadays shall और will, shall और will का यूज है स्पोकन इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी और एल ने ले लिया है जगह. Its place has been taken by L. So it can be used I'll when you are typing on WhatsApp on your keyboard. Easily you can get the hints. He will. Okay. So dear students, in spoken English normally the use of shall has been reduced, ये कम हो चुका है. We are using will with all the pronouns, जितने भी pronouns हम उनके साथ use करते हैं will का. And in case of determination and threat and warning, इन्हीं केस के अंदर आप हो he, she के साथ आप shall का use भी कर सकते हैं. For example, he shall definitely, he shall definitely या surely, he shall definitely, he shall definitely top the exam. वो इस बार एग्जाम में टॉप करेगा ही करेगा. तो with he you can use shall also, but only in the cases of determination and threatening. threatening का एग्जाम्पल अगर हम देखे जाए तो I'll kill you, I'll kill you. तो here you are using will, because यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, will का यूज कर रहे हैं. I will kill you. तो here it is showing threatening, ये धमकी शो कर रहा है. तो I के साथ आपने क्या यूज कर दिया, will का यूज कर दिया, ना कि shall का. So I hope you understood these models. shall का अगर हम एक और यूज देखें तो shall nowadays is being used for confirmation also. shall को हम जो है confirmation के लिए भी यूज करते हैं. मतलब जब हमारा एक्सप्रेशन हो कि हम किसी चीज से कोई कंफर्म करना चाहते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले हम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम शैल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शैल आई ओपन द डोर, मतलब आप दरवाजा खोलना चाहते हैं. यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड यू आर सिटिंग इन द बस, यू वांट टू टेक द परमिशन, यू वांट टू कंफर्म दिस थिंग. शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं. ओके, शैल वी स्टार्ट द गेम, क्या हम अपने गेम स्टार्ट कर दें. So in this way shall is also used for the confirmation also. So dear students, today we have completed the uses of may, might, can, could, shall, will. So I hope you well understood it. आपको समझ आ गए होंगे. Pending models we shall complete in my next video. So if you have any doubt, you may discuss with me in the comment box.